Good afternoon, students. Welcome to this session. Today is the session where I will be discussing three questions which were asked in the JEE examinations few years back, and these questions are from the chapter of electrostatics. I have written the first question on the board right now. So there is a uniform electrostatic field in a region. The potential at the various points on a small sphere is found to vary from 589 to 589.8 volts. So the question is, what is the potential at a point on the sphere whose radius vector makes an angle of 60 degree with the direction of the field? Here are the four alternatives and we have to select the right one. So now we know that the potential difference, this is one formula, that is delta V is equal to E dx cos theta, where delta V is the potential difference between the 2 points and E is the electric field, dx जो है is the path length, and cos theta जो है आपका जो है that is the angle between the direction of E and the 2 points. So here delta V is the potential difference, E is the magnitude of electric field, dx is the path length or it is the distance between the 2 points, and cos theta is the angle between the direction of electric field and the 2 points in consideration. So we have, this is the one formula which we know, and second one is that this electric field is also equal to minus dV upon dx. ठीक है, where dV is the change in the potential and dx is the distance between the 2 points, and this dV upon dx is also called the potential gradient. Now here the minus sign is indicating that the potential is decreasing in the direction of the electric field. If I remove this minus sign, if E is equal to dV upon dx, then it means that the potential is increasing in the direction of electric field. So minus sign indicates that the potential is decreasing in the direction of electric field. So these are the two formulas which we have studied. That is the number 1 and this is the number 2. Let us say this is 1 and this is 2. Now here it is written that the potential at various points on a small sphere is found to vary from 589 to 589.8. So here जो है this dV is equal to 0.8 volt. ठीक है, this is the means delta V, this will be equal to 0.8 volt. That is the difference of these two. That is 589 to 589.8. So now this dV is, we know that this dV is equal to minus E dx. ठीक है. Here I have to just or it can also be written as dV can also be written as E dx. ये भी लिखा जा सकता है. This minus sign क्या आपको बताता है कि that is the potential is decreasing in the direction of the electric field. But if the potential is increasing in the direction of the electric field, then dV will be equal to E dx.
ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द पोटेंशियल इज वेरिंग फ्रॉम 589 टू 589.8, मतलब मिनिमम जो पोटेंशियल है वो 589 है। ठीक है, इससे नीचे नहीं, यहाँ से यहाँ, और अभी इसके बीच में वेरी कर रहा है। अब मेरे को एक हमें पोटेंशियल निकालना है एट अ पॉइंट whose radius vector is making an angle of 60 degree with the direction of electric field. So ये मेरा 589 जो है, दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल। अब यहाँ पर आप देखो फॉर्मूला है, लिखा हुआ है दैट मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी एक्स कॉस थीटा। ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डी एक्स कॉस थीटा। नाउ ई डी एक्स की जो वैल्यू है मेरी, दैट इज इक्वल टू 0.8। ई डी एक्स कितना है, दैट इज इक्वल टू 0.8। ये मेरा 0.8 है, यहां से आप देखेंगे, दैट इज दिस इज dv is what, this is the change in potential, this is the distance between the 2 points, and E is the electric field. So change in potential here is 0.8 volts. तो ये अगर मैं इसको 0.8 लिख लेता हूँ, ठीक है, cos थीटा है मेरा, cos 60 हो जाता है। तो ये कितना हो गया, मेरा आंसर हो गया 0.8 इंटू cos 60 की वैल्यू हाफ होती, दैट इज इक्वल टू 0.4। नाउ डेल्टा वी जो आ गया मेरा, दैट इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट हो गया। सिंस द मिनिमम पोटेंशियल, यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जो मिनिमम पोटेंशियल है मेरा 589 है, सो 589 से मेरा नीचे पोटेंशियल नहीं है। सो मेरा जो अब यहाँ पर आपका दिस ये जो डेल्टा वी है मेरा जो आया है, दिस इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट्स। सो द पोटेंशियल जो होगा पॉइंट के ऊपर, दैट इज द पोटेंशियल at the point which is under consideration will be equal to 589 plus 0.4. So जिसका आंसर हो जाएगा मेरा 589.4 वोल्ट्स। ठीक है, यहाँ मैंने प्लस क्यों लिया, बिकॉज ये मिनिमम है। ठीक है, ये दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल ऑन दी दिस सरफेस ऑफ दिस स्मॉल स्फीयर। ठीक है, इसीलिए, और जो मेरा जो दिस डेल्टा वी आया है वो आया है मेरा 0.4 मैंने लिया है। ठीक है, मैं माइनस नहीं ले सकता हूँ, दिस दिस डेल्टा दिस वी, यहाँ से इसकी दो वैल्यूज आ सकती हैं, दैट इज इक्वल टू मेरा दैट इज ई डी एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी 0.8 भी आ सकती है एंड -0.08 भी हो सकती है। बट अगर मैंने माइनस उसको लिया होता तो ये डेल्टा मेरा क्या हो जाता, माइनस हो जाता। माइनस अगर मैं लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 589 माइनस 0.4, तो वो आपका पॉसिबल नहीं है। तो मेरा क्या है, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको बताया कि इफ द दिस माइनस साइन का मतलब ये है कि दिस पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ इट इज इंक्रीजिंग then this minus sign will not be there. So dv will be equal to, so in this case dv will be equal to, dv is equal to e dx हो गया, dv is equal to e dx and that will be equal to 0.8 because dv जो है मेरा, that is the change in potential is 0.8. तो यहाँ पर मैंने यहाँ 0.8 लगाया, इसे into cos 60 किया and we have got 0.4. So the potential at the point under consideration will be equal to 589.4. So the correct answer is C. That is 589.4. ठीक है, so now let's move on to the second question. This question was asked in the JEE I think mains examination in I think 2017, and I don't remember the exact year, but approximately 5 or 6 years back this question was asked in the JEE mains examination. I have one more question here. 3 concentric metal spherical shells. 3 concentric metal sphere
radii are 2r and 3r. Are given charges of Q1, Q2 and Q3 respectively. Yes, respect the surface charge density on the outer surface are equal. The surface charge density on the आउटर सरफेसेस आर इक्वल, मतलब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो तीनों स्फीयर्स की बराबर है. द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द शेल, you have to find the ratio of the charge given to the shell. The ratio of charge given to the shell is, there is first option is 1 to 3, 1 is to 2 is to 3, B is 1 is to 3 is to 5, C is 1 is to 4 is to 9. ठीक है, and there is one more option, 1 is to 8 is to 18, 1 is to 8 is to 18. So these are the four options which we have been given in this question, and we have to find the correct answer. तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ. कंसेंट्रिक के मतलब है हैविंग द सेम सेंटर. सो यहाँ पर एक स्फीयर हो गया मेरा, फिर दूसरा ये हो जाएगा, एक तीसरा ये हो गया. ठीक है, इसका जो रेडियस हो गया वो R1 है, इसका जो है ये हो गया R2 हो गया, और इसका जो है आपका ये हो गया R3. ठीक है, 3 concentric metal spheres of radius R, R2R and 3R given charges of Q1, Q2 and Q3. तो इस पे मेरा हो गया चार्ज Q1 दे दिया इस वाले पर, इस पे दे दिया मैंने Q2, और इस पे मैंने दे दिया Q3. ठीक है, अब ये सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेसेस आर इक्वल. सो we have to find the ratio of charge given given to the shell. Now यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो मेरा जो shell है, it is having some thickness. Maybe it has got an this inner surface, and it is means there is one inner surface on and there is one outer surface. ठीक है, and there is one inner surface on this shell also, and there is one outer surface है. इसमें भी inner है, एक outer है. तो हमने क्या किया अभी कि outer पे हमने Q1 चार्ज दे दिया इसमें. तो जब हम इसमें Q1 दे देंगे तो minus Q1 will be induced on the inner surface of this sphere. Minus Q1 that is on the second sphere. और माइनस Q1 यहाँ पर इंड्यूस हुआ तो इसके आउटर सरफेस पे क्या इंड्यूस हो जाएगा Q1. इसके ऊपर ऑलरेडी Q2 है, तो इसके ऊपर कितने चार्ज हो गए, Q1 प्लस Q2 हो गए. ठीक है, अब Q1 प्लस Q2 जो है दे विल इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर दैट इज विच इज हैविंग अ चार्ज Q3. तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस पे जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर इनर सरफेस पे आ जाएगा माइनस Q1 माइनस Q2. ठीक है, ये इनर सरफेस पे इसके दैट इज द लास्ट वन जिसके ऊपर चार्ज Q3 है.
अब ये अगर इनर सरफेस में माइनस Q1 इंड्यूस हुआ है और माइनस Q2 इंड्यूस हुआ है, तो दिस विल इंड्यूस अ चार्ज Q1 एंड Q2 ऑन द आउटर सरफेस। तो Q3 यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे Q1 हो जाएगा और प्लस Q2 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो नाउ यहाँ ये कह रहे हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ऑन द आउटर सरफेस आर इक्वल, मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज दिस, लेट अस से इसको ABC कर लेता हूँ, ये A हो गया स्फीयर, ये B हो गया और ये हो गया C। So the surface charge density of A is equal to B and that is equal to C. इसका surface charge density क्या हुआ, इसके ऊपर जो चार्ज है वो तो Q1 ही है। अब स्फीयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है यहाँ पे, जो एज पर द फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू 4 पाई, यहाँ पर हो जाएगा R1 स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर चार्ज क्या हुआ, जो सेकंड स्फीयर है दैट इज बी के ऊपर चार्ज क्या हुआ, पहले Q2 तो था ही है बट इसके ऊपर इंड्यूस भी हो गया एक चार्ज दैट इज Q1। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा R1 R2 एंड लेट अस से ये है आपका R1, ये R2 हो गया, R2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, इस पे चार्ज जो इंड्यूस हो गया है वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई R3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव गॉट। अब इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट Q डिवाइडेड बाई, ये 4 पाई से सब में कॉमन है, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ R1 हो गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। नाउ R2 इज इक्वल टू 2R, तो ये कितना हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 सॉरी हाँ, ये R1 जो है वो R है मेरा, तो इसको मैं R लिख देता हूँ। R2 जो है दैट इज इक्वल टू 2R है, तो ये आपको हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर, दैट विल बिकम 4R स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई R3 कितना है 3R है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9R स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। तो ये हो जाएगा मेरा Q1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 4R स्क्वायर। तो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू R और कैंसिल हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 4Q1। ये पहली इक्वेशन आई। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, दैट इज सेकंड वन एंड द थर्ड वन। तो इसको जब हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, Q1 प्लस Q2, R तो कैंसिल हो जाएंगे, Q1 प्लस Q2 ये हो जाएगा इंटू 9, ये 9 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और ये भी हम कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो इक्वेट दिस वन विद दिस। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनती है। थर्ड क्या बनती है, इसको और इसको अगर हमने इक्वेट कर दिया तो हमारा हो जाएगा ये R और R कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 9Q1 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट वन और थर्ड वन को इक्वेट किया, तो R स्क्वायर तो दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 9Q1 विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये दिस इज द थर्ड इक्वेशन। नाउ Q1 प्लस Q2 कितना है 4Q1, ठीक है। Q1 प्लस Q2 जो है दैट इज इक्वल टू 4Q1, सो इट इम्प्लाइज दैट 9Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 कितना है 4Q1 प्लस Q3। सो Q3 मेरा सिंपल सा हो गया 5Q1, Q3 आ गया 5Q1। Q1 तो हमको Q1 पर एक हो गया आपका, Q3 भी हो गया। नाउ Q2 हमारा कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देखो 4Q1 जो है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4Q1। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट Q2 इज इक्वल टू 4Q1 माइनस Q1 दैट इज इक्वल टू 3Q1, ठीक है। सो
रेशियो क्या हो जाएगा, Q1:Q2:Q3 का रेशियो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1:3Q1:5Q1, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1:3:5, ठीक है. So this is how we will solve this equation. The correct answer is B. That is 1:3:5. The most important thing in this question was that because of the charge on the innermost surface of this because of the Q1 charge on the innermost sphere, that is this charge is on the outer surface of this innermost sphere, a negative charge was induced on the inner sphere of inner surface of the sphere B. So यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, उसके वजह से जो है आपको आउटर सर्फेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, क्या, Q1. तो Q1 हो गया, इसमें ऑलरेडी Q2 था, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर हो गया Q1 + Q2. फिर ये जो है Q1 + Q2 विल इंड्यूस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सर्फेस ऑफ स्फीयर C. ये हो गया -Q1 एंड -Q2. नाउ दिस विल इंड्यूस अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ C. सो ये हो गया Q1 + Q2 और Q3 ऑलरेडी है. फिर क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर ऑन द आउटर सर्फेसेस ऑफ दीज स्फीयर्स आर इक्वल, सो मैंने इसको यहाँ पे ये मेरा हो गया आपका सरफेस डेंसिटी, दैट इज Q1. इसका हो गया सरफेस डेंसिटी Q1/4πr². यहाँ पे R1 लिया था, R1 R2 एंड R3. और यहाँ पर जो R1 R2 क्या है, R1 जो है वो R है, R2 जो है वो 2R है और R3 क्या है वो 3R. तो उसको यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. एंड फाइनली वी हैव लैंडेड अप विद दीज इक्वेशंस by equating this with this with this, and we have also equated this second and the third one, but that was not required. So from the equation number 1 and the equation number 3 we have got Q2, the values of Q2 and Q3 in terms of Q1. तो हमारा जो Q1:Q2:Q3 जो है आंसर आ गया 1:3:5. So this is the answer, the correct answer is B. Now let's next move on. Let's move on to the third question. That is, यहाँ लिखा हुआ है third question is an electric field and is equal to 25I plus 30J. J न्यूटन पर कूलम. ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है. An electric field E exists in a space, in a region of space. ठीक है. If the potential at the origin is 0, potential at the origin is 0, then the potential at x is equal to 2 and y is equal to 2, then at x is equal to 2 meters m and y is equal to 2, is
there are four options. Minus 110 joules. B is minus 140 joules. C is minus 120 joules. And D is minus 130 joules. ठीक है, ये आपका चार दिए हुए हैं. और हाँ, नाउ इसमें लिखा हुआ है if an electric field is existing in a space, in a region of space, the potential at the origin is zero. मतलब ये कह रहे हैं, see, we define the position of any particle or any object in space with the help of the Cartesian frame of reference. तो ये origin उसी के ही उस कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन की ये बात कर रहे हैं. ये x हो गया, दिस इज द कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. x y and z एक्सेस होता है उसके अंदर और टाइम भी होता है. सो ये ओरिजिन हो गया. और यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड y. तो पोटेंशियल मींस यहाँ पर कहीं ये आपको मान लीजिए ये आपको x1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया y हो गया, ये 2 हो गया. सो ये पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है आपको. ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल दिया हुआ है ओरिजिन पे तो जीरो है, इस जगह पे जीरो है. ठीक है, पोटेंशियल इज जीरो. और अब आपको निकालना है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. लेट अस से दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द डिस्टेंस. ये आपको 2 मीटर हो गया, लेट अस से ये, और ये भी आपका 2 मीटर हो गया. ठीक है, और ये आपका पॉइंट ओरिजिन है, ये आपको ओ है. यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो आपको जीरो है. सो वी नो दैट, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, वेयर dV अपॉन dx इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है, और E जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए हम चलते हैं. इट इम्प्लाइज दैट dV विल बी इक्वल टू माइनस E dx. ठीक है, dV इज इक्वल टू माइनस E dx हो गया. अब यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे देखो, E इज इक्वल टू 25I मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द x डायरेक्शन. I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द x डायरेक्शन एंड J इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द y डायरेक्शन. सो 25 न्यूटन पर कूलम जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, 25 न्यूटन. एक मिनट, ये 25 न्यूटन पर कूलम जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में आपकी है 30 न्यूटन पर कूलम, इन द वाई डायरेक्शन में है. सो द पोटेंशियल जो है ना इस पॉइंट ए पे, दैट विल बी द पोटेंशियल इस पॉइंट पे जो होगा, दैट विल बी मीन्स यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा. देखिए, पहली चीज तो ये आपको बता दूं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. The electrical field is generated due to the potential. अगर कोई भी सरफेस है, मान लीजिए अगर सब सरफेस पे अगर आपका that there is no potential difference, means this surface has got a uniform, means all the entire surface is at the same potential, then there will be no this electric field. Electric field is generated only when there is a potential difference. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा ये होगा दिस. इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं dV. सो माइनस E dx. ठीक है, ये हम कैसे क्या लिख सकते हैं, माइनस, अब इन E की वैल्यू क्या है मेरी 25I प्लस 30J. ठीक है, ये होगा. एंड दिस विल बी नाउ हियर, दिस इज dV. ठीक है, सो नाउ दी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे. वी कैन से दैट द पोटेंशियल जो होगा दिस इज फ्रॉम 0 से A, और ये हो जाएगा आपका 0 से 2. ठीक है, 0 से 2.
तो ये हम इसको अगर हम करते हैं तो ये मेरा हो जाता है दैट इज VA माइनस V0 इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है तो हम लिख सकते हैं 25I dx हो जाएगा, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन 0 से 2 होगा, दैट इज इक्वल टू 30J, ये हो जाएगा आपका dy। यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा, जो पॉइंट ए के ऊपर आएगा, इस पॉइंट के ऊपर, दैट विल बी द सम ऑफ द पोटेंशियल because of this E acting in this direction and in this direction. So यहाँ पर आपका जो आंसर आता है इसको मैं अब यहाँ लिख लेता हूँ. It implies that this is the now the potential at V0. वो तो जीरो है, तो पोटेंशियल VA हमें निकालना है. यहाँ पे तो पोटेंशियल V यहाँ पे आपको पता है कि जीरो है at the origin, जहाँ पर मैंने I have integrated from 0 to A है, तो V0 is the potential at this origin, वो हमारा जीरो है तो इसीलिए V हो गया. ये हो गया -25. अच्छा, ये आपका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25, ये हो जाएगा x, ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस ये है एंड दिस विल बी माइनस. ठीक है, ये क्योंकि ये आपका माइनस है ना, दिस इज अ माइनस है, तो ये आपका आप ऐसे ही ले सकते हैं कंप्लीट दिस वन. तो इसको माइनस, जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, -25 हो गया फ्रॉम 0 to 2, और ये आपका माइनस, इसको लिख देंगे 30 y 0 to 2. तो ये हो जाएगा -25 है ना, ये दैट इज 25 इंटू 50, 50 माइनस 0 50 हो गया, और ये हो गया -60 माइनस 0. So the answer will be equal to -110 joule. So पोटेंशियल जो है इस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा आपका -110 जूल. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, वी हैव यूज दिस फॉर्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. तो आज यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है ए, दैट इज 110 जूल. ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है. It is very very similar to what to the question which we have just done. और क्वेश्चन ये है, the electric field दी हुई है, E is equal to 30 x square I. The potential difference, that is where V is zero potential. Okay, the potential difference VA minus V0, where VA is the potential at x equal to 2, where VA is the potential at x equal to 2 meter, and V0 is the potential at origin. ठीक है, यहाँ पर
बटे x इज इक्वल टू 0. सो अगेन सेम चीज हमको हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. वी विल यूज द सेम फॉर्मूला. E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, where dv is the change in potential. This is the distance between the 2 points, and dv upon dx is also called the potential gradient. Minus sign का क्या significance है? The minus sign tells us that the potential is decreasing in the direction of the electrical field. अगर ये minus sign नहीं होता, अगर नहीं हो है, इसका मतलब है कि the potential is increasing in the direction of electrical field. So अभी हम इसको अगर यूज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स. वी विल इंटीग्रेट इट. ठीक है. सो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to 2, और इसको हम कर देंगे फ्रॉम 0 to सम पॉइंट ए. फ्रॉम 0 to ओरिजिन है, इसको ले लिया है मैंने, एंड दिस इज द पॉइंट वी ए. ठीक है. सेम ऐसे ले लिया है. अब यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की दैट इज जो डायरेक्शन मीन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज एक्टिंग ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन. और अब इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 30 ये न्यूटन है पर कूलम. ठीक है. सो ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी जीरो दैट इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू है, इंटीग्रेशन हो गया 30 एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 2. तो ये हो जाएगा माइनस, ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 10 एक्स क्यूब. ठीक है. नाउ द पोटेंशियल एट वी जीरो इज द पोटेंशियल एट एक्स इक्वल टू 0, एंड ये हो गया तो वी ए, ये हमारा हो गया वी ए माइनस दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड विच इज इक्वल टू या इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पहले हमारी 2 लगाएंगे 2 4 8 हो जाएगा माइनस 80 माइनस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 80 ये जूल्स या जूल्स पर. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं, यहाँ पर 4 ऑल्टरनेटिव हैं. वन इज 120 माइनस 120 माइनस 80 and fourth one is 80 joules per coulomb. So हमारा आंसर आ गया this one, that is minus 80 joules per coulomb. So this is the potential difference across these 2 points, and this is equal to minus 80 joules per coulomb. So these were the 4 questions which were asked in the JEE exam, means just for I think 4 or 5 years back, and so I thought it wise to just discuss these problems with you. These problems are very easy. They basically in JEE mains examination they test your conceptual means how well versed you are in the conceptual physics. Conceptual physics में अगर आपके base is strong and then these questions can easily be done. So thank you very much for this for giving your time for this session, and probably in the next session I will be taking up few more questions from the same chapter which were asked in the JEE mains examination. So thank you very much. Have a nice day.